Good morning. Let us start with today's session. And the question goes like this. An airline that operates 7 days a week has timetable shown below. Okay, so let me show the timetable. Crew must have a minimum layover of 5 hours. This is the important thing which I have highlighted. Minimum layover of 5 hours. Minimum layover of 5 hours means after going for one flight, he will have to rest for 5 hours. Okay, let us say he took the flight from here to Delhi, and after landing in Delhi he has to wait for 5 hours as a rest time, and then he can again come back with another flight to Mumbai. So that is the meaning of minimum layover. That means he has to minimum rest for 5 hours. Obtain the pairing of flights that minimizes layover time. What we have to minimize, the objective is to minimize the minimum or to minimize the layover time. Layover time means how much time he is away or he is resting or away from home. Assuming that crews flying from Delhi can be either based at Delhi or Jaipur at the even given pairing. अब वो जो पायलट है, that pilot can be from Mumbai or from Delhi also, he can be from Jaipur also. So we have to select that pilot and that assignment such that the total layover time will be minimum. And the data given is like this. Let us say there are two pictures. On the left hand side it is a takeoff time, and on the right hand side it is a landing time. So if you observe the first table, it's given that it is going from Delhi to Jaipur. So flight number 101 is starting from Delhi at 6 a.m. and arriving at Jaipur at 8 a.m. That means 2 hours flight time. And similarly for flight number 102, 103 and 104. And the scheduled time at Jaipur airport for the flights 201, 202, 203 and 204 are 8 a.m. respectively, 9, 2 p.m. and 7 p.m. Now what we have to do? We have to make a pairing of flights. Okay, understand this question. We have to make the pairing of flights. Pairing of flight means let us say you are a pilot and you are in Delhi and you are going to Jaipur and you are going by flight number 101. Okay, understand the scenario which I am going to create here. Okay, so you will be starting at 6 a.m. in the morning and you will be landing in Jaipur at 8 a.m. Now you have to return back from Jaipur to Delhi because your home is in Delhi. All of them are waiting for you. So you have to come back. So for coming back, you have four options. Either you come from flight number 201, you can come by flight number 202, 203, and 204. So the question is which flight he should take such that the minimum layover time. That means the layover time is minimum. But one more condition is given that the crew must have a minimum layover of 5 hours. Okay, so let us start. To make a table, we have to now apply a logic. So what I said, we have to make the pairing of the flights. So let us say I will make a table like this. Please understand the logic. I will say that he is going from flight number 101 and he has four options to return. The options are 201, 202, 203 and 204. Okay, these four are the options. And similarly he can also go by four options. So the four options in the going are 102, 103 and 104. So now you can see I have made a assignment table, so wherein I have converted the flights. So this are the, let us say, onward journey flights 101, 102, 103 and 104, and this is 201, 202, 203 and 204, which are the returning flights. So what will come now? Again, give me the logic and tell me what should come here. Not number, logically what should come here. Give me in sentence. What should come here at the intersection of 101 and 201? क्या आना चाहिए? layover time. वेरी गुड. बिकॉज द ऑप्शन इज टू मिनिमाइज द ले ओवर टाइम, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो काय की आएगी? ले ओवर टाइम की आएगी. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ. जस्ट ऑब्जर्व द 101 एंड 201. हम लोग को यहाँ पर आंसर चाहिए 101 और 201 पे, तो उस पर ऑब्जर्व करो. देखो, let us say pilot is taking flight number 101. he is going from here at 6 a.m. but जयपुर पर टच कब हुआ? वो 8 a.m. को टच हो गया. ओके, he touches जयपुर एयरपोर्ट एट 8 a.m. हम लोग को फाइंड क्या करना है? यहाँ से वहां तक का टाइम नहीं फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम ले ओवर टाइम. वी डोंट हैव टू ऐड फ्लाइट टाइम. फ्लाइट में उसको जितना टाइम लग रहा है उसको लगने, तो हमको मिनिमाइज क्या करना है?
ले ओवर टाइम, तो फ्लाइट टाइम को उसमें हम काउंट नहीं करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग देयर, ही इज रीचिंग द जयपुर एयरपोर्ट एट 8 AM, मतलब यहाँ अब से उसका ले ओवर टाइम शुरू होगा. सो इफ यू वांट टू रिटर्न बैक, इफ यू वांट टू रिटर्न बैक विथ 201, देखो तो अच्छे से समझो इसको. वहां पर सुबह 8 बजे पहुंच गया और उसको अगर 201 वाली फ्लाइट से वापस आना है तो वो कितने बजे की है, वहां से 8 बजे की है, यस और नो? Yes. ठीक है, वो वहां पर 8 बजे पहुंच गया, ही हैज लैंडेड एट जयपुर एट 8 AM, और वहां से दूसरी फ्लाइट अगर उसको 201 से आना है तो दूसरी फ्लाइट भी 8 बजे की है, तो क्या उस फ्लाइट से वो वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. लॉजिकली भी सही नहीं है, बिकॉज 8 AM को यहाँ पर टच डाउन करेगा और फॉरन वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ेगा, तो लॉजिकली भी सही नहीं है. और दूसरा हमको क्वेश्चन में कंडीशन भी दिया है, वन कंडीशन इज ऑल्सो गिवन दैट द मिनिमम ले ओवर टाइम शुड बी ऑफ 5 hours, यस और नो? तो अगर उसको 201 वाली फ्लाइट ही पकड़ना है तो उसको नेक्स्ट डे 8 बजे की पकड़ना पड़ेगा, यस और नो? कितना टाइम लगेगा बताओ? आज सुबह 8 बजे वो वहां पहुंचा और उसको फिर नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, तो कितना रुकना पड़ेगा? 24 hours. Very good, very good. So here I will put the time he will be resting, or the minimum layover time will be, so here it will be 24. Okay. Now with the same logic, now start with 101 and 102. 101 क्या है, वहां पर 8 बजे पहुंच गया और 202 वहां से 9 बजे का टेक ऑफ है, तो पॉसिबल है? 1 घंटे का टाइम है उसके पास, पॉसिबल है? नो सर. नहीं है. लॉजिकली पॉसिबल है, बट एयरलाइन ने कंडीशन दे दिया कि 5 घंटा उसको मिनिमम आराम करना है. ओके, दैट मींस इफ यू वांट टू कम बैक बाय 202 ही हैज टू टेक द नेक्स्ट डे फ्लाइट, यस और नो? यस सर. हाँ, तो अगर नेक्स्ट डे की फ्लाइट लेना है उसको 202 की, तो वो कितना टाइम वेट करना पड़ेगा उसको एयरपोर्ट पे? 25 आवर्स. आज सुबह के 8 बजे से लेके कल सुबह के 9 बजे तक, दैट मींस यू हैव टू वेट फॉर 25 आवर्स. सो आई विल राइट हियर 25. ओके, चलो थर्ड केस 101 to 203. सुबह 8 बजे पहुंचा और दोपहर में 2 बजे की फ्लाइट है वहां से रिटर्न, पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल. सुबह 8 बजे पहुंचा और 5 घंटा वेटिंग, 9, 10, 11, 12, 1, यस 1 बजे तक का उसका वो कोटा पूरा हो जाता है 5 घंटे वेटिंग का. सो ही कैन टेक फ्लाइट नंबर 203 ऑन सेम डेट. सो द टाइम विच इज ही विल बी ले ओवर इज बी हाउ मच, कितना रहेगा ले ओवर टाइम? 6 hours. सुबह 8 बजे से लेके शाम के 2 बजे तक, तो 6 आवर, मतलब उसी दिन वो उस फ्लाइट से रिटर्न आ सकता है. सिमिलरली 8 बजे, सुबह 8 बजे वहां टच डाउन किया और शाम में 7 बजे की फ्लाइट है 204. अगेन पॉसिबल और नो? पॉसिबल. और टाइम कितना रहेगा? 11 घंटे. सुबह 8 से लेके शाम के 7, यस 11 hours. Okay. So I hope you have understood the logic how to calculate the layover time. Yes or no? Yes sir. Okay. So complete this table. से 102 का पेयरिंग करता हूँ 201 के साथ. 102 जयपुर में कब अराइव हो गई? 10 AM. जस्ट अ मिनट. जयपुर टच डाउन हो गई वो 10 बजे. अब यहाँ से उसका लेओवर टाइम शुरू हो गया, अब उसका आइडल टाइम शुरू हो गया, आराम करने का टाइम शुरू हो गया. 10 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच गया. तो देखो 102 का पेयरिंग कर रहा हूं मैं 201 के साथ. ये सुबह 10 बजे पहुंचा और 201 का टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे निकलने का, मतलब वो वहां से फ्लाइट जा चुकी है. जब तक ये वहां पहुंचा वो फ्लाइट वहां से निकल चुकी है. तो अगर उसको यही फ्लाइट पकड़ना है 201, तो वो नेक्स्ट डे की पकड़ेगा, यस और नो? नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे. तो आज सुबह 10 बजे से लेके कल सुबह के 8 बजे तक कितना टाइम उसको वेट करना पड़ेगा? 22 hours. 22 hours. सिंपल. सो यहाँ पर आ जाएगा 22. So let me take one more example. Let us say I am pairing for 104 and 203. Okay, I am pairing for 104 with 203. 104 शाम में 10 बजे, रात में 10 बजे वहां पहुंचा, जयपुर पहुंच गया, ठीक है. और उसको आना है लेट अस से 203 से. 203 है दोपहर में 2 बजे. अब ये बेचारा पहुंच ही रहा है रात को 10 बजे, तो दोपहर में 2 बजे की फ्लाइट कैसे पकड़ेगा? तो उसको नेक्स्ट डे 2 बजे की फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा. तो कितना टाइम उसको रुकना पड़ेगा? रात के 10 से सुबह के 10 हो गए 12 घंटे, और 11, 12, 1, 2, 4 घंटा और बढ़ा लो, 12, 4, 16. सो 104 with 203 will be 16. Correct? Okay, so I hope that everyone has understood the logic. You have to find out the minimum layover time from which flight he will go and which flight he will come. Now I am finding out all the possible combinations. I am not telling that this is minimum.
मैं भी क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, देन वी विल सी with our regular assignment problem that which pairing should be done. So let me display the answers and you check whether your answers are correct or not. So the answers are on the screen. Yes sir, correct. चलो, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बराबर से पढ़ो। हमने दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए। वन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड इज मिनिमम लेओवर ऑफ 5 आवर्स एंड मिनिमम लेओवर ऑफ टाइम, अभी हमने निकाले सिर्फ, एक्चुअल मिनिमम नहीं है, बट उसमें लास्ट में एक और भी लाइन है, देखो कुछ, द क्रू फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली कैन बी आइदर बेस्ड एट दिल्ली और जयपुर फॉर एनी गिवन पेयरिंग। अरे भाई, तुमने एक तरीके से सोचा, तुमने क्या सोचे कि मैं मुंबई में हूं और मुंबई से मेरे को फ्लाइट यूएस लेके जाना है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यूएस का पायलट है, पायलट का घर ही यूएस में है, तो वो यूएस से इंडिया आएगा और इंडिया से यूएस जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, यस और नो? यस सर। पायलट कहीं भी रह सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि इंडिया में ही रहेगा। और फॉर आवर केस वी हैव टू सिटीज, दिल्ली एंड जयपुर। तो अभी हमने क्या देखे, ही स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड कम बैक टू दिल्ली, मतलब उसका घर दिल्ली में है, ठीक है। अभी हमने क्या लॉजिक लगाया कि ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज गोइंग टू जयपुर, कमिंग बैक टू दिल्ली एट हिज होम टाउन। बट उल्टा भी तो हो सकता है, ही कैन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, केम टू दिल्ली एंड अगेन गो टू जयपुर, ये भी पॉसिबल है। यस सर। हाँ, तो उसके लिए अभी हमको इस तरीके का टेबल बनाना है। सी दिस क्रू बेस्ड इन जयपुर। अब आप लोग कौन से दो कॉलम कंपेयर करेंगे? अभी तक अपन ने क्या कंपेयर किया, ये दो कंपेयर किए। देखो, वी कंपेयर्ड दिस कॉलम दैट इज अराइवल टाइम एंड द डिपार्चर टाइम। अब क्या करेंगे, सेम। देखो, अब लॉजिक देखो, बंदा जयपुर से देखो लॉजिक समझो, जो पायलट है वो क्या हुआ, जयपुर से दिल्ली आ गया, तो उसका अराइवल टाइम क्या है पहली फ्लाइट का, 10 AM, यस और नो? अब वो जयपुर से निकला है, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम जयपुर एंड इज टच डाउन एट दिल्ली एट 10 AM, यस और नो? क्योंकि अराइवल टाइम दिल्ली का 10 बजे है। समझ में आ रहा है लॉजिक कुछ? यस सर। ठीक है, जयपुर से चालू किया और दिल्ली में कब अराइव हुआ, 10 बजे। और दिल्ली से उसको डिपार्टिंग, अगर उसको 101 से आना है, फ्लाइट 101 से रिटर्न आना है, तो उसको सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, तो टच डाउन ही 10 बजे कर रहा है और 6 बजे की फ्लाइट है। पॉसिबल है क्या उस डे पे? नो सर, नहीं है। मतलब नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे, तो कितना आवर्स वेट करना पड़ेगा? ऑलरेडी तुम्हारे स्क्रीन पे है, इट शुड बी 20 आवर्स। हाँ 20 ओके। सो फ्रॉम टुडे 10 AM टिल टुमारो 6 AM, कितना आवर्स वेट करना पड़ेगा? 20। एंड लेट अस से वन मोर केस, आई विल एक्सप्लेन। लेट अस से दिस वन, द अराइवल टाइम इन दिल्ली इज 9। ओके, लेट अस से द अराइवल टाइम इज दिल्ली एट 9। मैं 204 से आ रहा हूँ और मुझे रिटर्न जाना है लेट अस से 103 से, मुझे रिटर्न जाना है 103 से। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम टाइम बिटवीन 204 एंड 103। सो रात को 9 बजे टच डाउन किया और दोपहर में 2 बजे की फ्लाइट है, तो पॉसिबल तो नहीं है। नेक्स्ट डे दोपहर में 2 बजे जाएगा वो, तो आज रात के 9 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह दोपहर के 2 बजे तक कितना टाइम वेट करना पड़ेगा उसको? 17। रात के 9 से लेके सुबह के 9, रात के 9 से लेके सुबह के 9 कितना हो गया? 12 घंटा। 24 9 से 10 11 17। 17, yes 17. So if I make the pairing of 204 with 103, 204 with 103, the answer should be 17. So here it is written, yes, correct. 204 and 103 के बीच में the answer is 17. So any doubts now in the calculation of layover time? Now we have found out all the three conditions, or we have inculcated all the three conditions in our problem. The first condition was minimum layover time of should be of 5 hours. The pilot can be based from Delhi or Jaipur, and third one is the minimize the overall time that we will see as per our assignment problem. Any doubts to anyone? नो सर। नो। Okay. अब क्या हो रहा है देखो, अब फिर मजा आएगी। एक टेबल हमने निकाले क्रू बेस्ड इन मुंबई दिल्ली, एक टेबल अपन ने निकाले क्रू बेस्ड इन जयपुर। तो देखो, अभी अपन ने क्या किए, हमने पायलट के हिसाब से सोचे, पायलट यहाँ रहेगा तो उसको कितना रुकना पड़ेगा, पायलट यहाँ का रहेगा तो कितना रुकना पड़ेगा। असाइनमेंट ये नहीं बोलता है, असाइनमेंट बोलता है पायलट कहीं का भी रहने दो, मेरे को मतलब नहीं है। असाइनमेंट बोलता है मुझे मिनिमम बताओ, कि मिनिमम क्या होगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंबाइन दिस टू मैट्रिक्स। व्हाट डू मीन, आई मीन बाय कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 101 और 201 का अगर पेयरिंग करना है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन,
101 और 201 का pairing करना है, so he will be requiring 24 hours. If the pilot is in from Delhi, he has to wait for 24 hours. But for the same pairing of 101 and 201, if the pilot is of Jaipur, he has to wait only for 20 hours. तो अब आप क्या लॉजिक लगाओगे, किसको दोगे फ्लाइट, 24 आवर्स वेटिंग वाले को या 20 वाले वेटिंग को? 20 वाले सर। सिंपल, बिकॉज आवर एम इज टू मिनिमाइज. तो हमको अभी क्या देखना है, ओवरऑल देखना है. सो आई विल मेक अ न्यू मैट्रिक्स एंड द फाइनल मैट्रिक्स विल बी लाइक दिस, which is I have written, see there over there, minimum layover matrix. Now it is not based on pilot, it is the overall minimum. Pilot कहीं का भी रह सकता है, it can be from Jaipur, he can be from Delhi. So what I have done is we have taken the minimum of both the matrices. Logical समझ में आ रहा है, logic समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. Mathematical simple है, logic समझो. OR is purely logic and mathematics. So with this we got our question. हमारा क्वेश्चन जो अभी है राइट साइड में, that is our question to be solved for minimization problem. Sir, minimum layover 40 hours आ रहा है क्या? So let us say this is the question and the first step is to make the row minimum. So first row minimum number is, let us say, okay, let me go to the next step here only. Oh हाँ, one more thing. देखो मैंने यहाँ पर कुछ स्टार मार्क करके रखा हूँ. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टार मार्क क्यों किया मैंने? जस्ट टू आइडेंटिफाई द पायलट ओरिजिन. देखो जो 6 मैंने लिया हूं उस पर मैंने स्टार मार्क किया, दैट मीन्स आई एम टेकिंग द वैल्यू इफ द पायलट इज फ्रॉम दिल्ली. ओके, सो आई हैव जस्ट मेड द स्टार मार्क फॉर द वैल्यूज विच आई हैव टेकन फ्रॉम दिल्ली बेस्ड पायलट. Okay, check whether the number it is equal. Yes, smallest number from first row is 6, second row is 9, third row is 16, fourth row is 9. So if I subtract that, I will get this as the answer. Then similarly I will go for column side. Column में देखो हर column में already एक zero available है, so that step will be skipped. That means this matrix will be repeated as it is. Next step is to cover all the zeros with minimum number of horizontal and vertical lines. So how many of them are there? 4. So all the zeros are covered by minimum number of lines, that is 4. So we can say directly our solution is optimum. And now we will start with the assignment part. This is the important thing now. So for assignment, as usual, we will do 101 will be assigned to 203, 102 to 204, 103 will be pairing with 201, and 104 will be pairing to 202. So I will write all the assignments are made, hence solution is optimum. And the pairings are 101 203, 102 204, 103 201, 104 and 202. And the total minimum cost नहीं आएगा यहाँ पर, मेरा मिस्टेक है. What should be there here? Minimum Layover time. Yes, layover time. The minimum layover time is, so minimum layover time is 6 plus 9 plus 16 plus 9, that is 40 hours. You all are correct. Now where should be the crew based? So that's why I have made a star there. देखो यहाँ पर किसका pairing हुआ है, 101 का 203 से. स्टार मार्क थे मतलब पायलट शुड बी फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ इट शुड बी फ्रॉम दिल्ली. Similarly 102 और 204, again there is a star mark, that means pilot is from Delhi. 103 201, again star mark is there, that means pilot is from Delhi. And 104 202, 104 202, yeah. So 202 is 9 value, but it is not star mark, that means the pilot is from Jaipur. So I have written here Jaipur. So if we assign this kind of pairings, the minimum layover time will be the overall. Okay, again I repeat, the overall layover time should be minimum. It is not only for one single pilot, it is for overall all the pairing of flights.